So we now roll over to our next session. I'd request Garima to please come forward and take it forward. Thank you. We now move on to our next session, which is very exciting. Can we please have on the stage Mr. Mrityunjay Jha, गेहूं पे चर्चा. Please welcome Mrityunjay Jha, who is the editor and anchor Zee Business, and he ensures that no session goes without any excitement and a lot of discussion. Our panelists are Mr. Jatin Singh, Chairman, SkyMed Weather Services Private Limited. Mr. Jatin. Dr. Pradeep Kumar Bhatti, Breeder, Wheat Improvement, South Asia, Global Wheat Program, Station in Charge, Borlaug University, Borlaug Institute for South Asia, BISA, and CIMIT, India. Dr. Gurvinder Singh Mavi, Principal Wheat Breeder, Department of Plant Breeding and Genetics, PAU, Ludhiana. Mr. Puneet Singh Tind, Founder and Director, Northern Farmers, Mega FPO and CEO, Farm Grocer Inc., Saskatchewan, Canada. And Ms. Amandeep Kaur, farmer from Punjab. Hello, so we have Ved Dhingraji over here. Sorry to come in and just a small request, Mrityunjay ji, please, would you like to hand over the Lifetime Achievement Award to Mr. Ved Dhingra? The grand old man. नमस्कार और आप सबका पंजाब की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं WPPS व्हीट प्रोडक्ट प्रमोशन सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम के लिए व्हीट बेल्ट को चुना और हम गढ़ में आकर गेहूं की बात कर रहे हैं, किसानों के बीच, इंडस्ट्री के बीच, स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो उसका फील एक अलग होता है। जब गेहूं की बात गेहूं बेल्ट से बाहर कहीं होती है तो वो फील नहीं आ पाता है, वो टच नहीं आ पाता है। तो इसके लिए WPPS का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चंडीगढ़ को चुना इस प्रोग्राम के लिए। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें हम कहाँ पर हैं, और जो वेराइटीज़ हैं व्हीट की इंडिया में वो कैसी वेराइटीज़ हैं, और उस वेराइटीज़ में नए डेवलपमेंट के कितने पोटेंशियल हैं, कितनी संभावनाएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। वैसे जो हमारा अभी प्रोडक्टिविटी है वो ग्लोबल एवरेज के मुकाबले ही है, मतलब हम ख़राब नहीं हैं, लेकिन क्या इसमें और बेहतर करने की गुंजाइश है, क्या हम और बेहतर वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं, हमने करके दिखाया भी है पहले भी, आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, इस पर हम बात करेंगे। और अभी भी अजय गोयल जी से हमारी बात हो रही थी, तो बात ये हो रही थी कि व्हीट ट्रेडर की एक ट्रेजेडी ये है कि ग्रेन के जो ट्रेडर हैं, जो इस ट्रेड में हैं या व्हीट के ट्रेड में जो हैं, उनको
मदर इंडिया की कन्हैया लाल की तरह देखा जाता है कि मदर इंडिया में जो कन्हैया लाल का इमेज था, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो कि अगर कोई ट्रेडर है ग्रेन का तो वो चोरी होगा, मतलब उनके उनकी मंशा गलत ही होगी, उस नज़रिए से देखा जाता है और इसीलिए इंडस्ट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मैं इस पैनल को शुरू करूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आप सबके लिए। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप दिखा पाएँ और उसके बाद फिर हम पैनल को आगे बढ़ाएंगे, प्लीज़। Good afternoon, everybody. Myself, Dr. Gurvinder Singh Mavi, Principal Wheat Breeder at Punjab Agriculture University, Ludhiana. From last 20 years, I did my research on wheat breeding for the development of bred wheat varieties. Our main emphasis is to develop a variety which are fruitful for our farmers. But in addition to farmers, we also want to develop a varieties which are mainly consumable to our millers or our industry. So I just within next 4 or 5 minutes, I want to show you my presentation regarding what are the factors we have in mind to develop a varieties, please. Yeah, we have 3 points regarding our discussion. First one is the latest production trends and yield improvement. Second one is sustainability and climate adaptation strategies. And third one is the high performing varieties. So one by one, I want try to complete these points. First one is the latest production trends and yield improvements. From last number of years in Punjab, we have a very good production and productivity, but during the last year, 24-25, we have an area of 35 lakh hectares, and out of which we have a yield of 53.84 क्वांटल्स पर हेक्टेयर एंड आवर प्रोडक्शन इज़ 188.44। यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि पिछले जितने भी सालों से हमारे पास ये डाटा है उसमें प्रोडक्शन और यील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर आया इन 24-25। This is not only because of the weather conditions, but this is also due to our high yielding varieties. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2021-22 our production is 148.4। उस साल जो गर्मी टर्मिनल हीट जो कहते थे वो ज़्यादा होने के कारण यील्ड जो थी लॉस हुआ था, इसलिए not only the varieties but weather is also play a very important role in our yield and production. Regarding the contribution of Punjab to the central pool in 2024-25, we have a 124.6 lakh tons contribution to the central pool. This is the impact of our PBW826 variety. Mr. Jha, this is how you say how varieties are increase our production and product. This is the slide which I want to show you that. PBW826 is a variety last year, it is near about 10 lakh hectares in Punjab. Out of this is give a 5 quintals per more yield as compared to the other varieties, due to which there is 1,287 crores benefit to our farmers, or you say value additional production is rupees 1,287 crores. So this is a landmark variety because it covers near about 40% area in the Punjab last year. Now, what are the major issues for production of wheat? These are the environmental stresses are there. First one is the terminal heat stress, then drought, erratic rainfall. As in the last 3-4 months, we have a lot of rainfall. That is also very play important role in the production of the different wheat rice varieties. Then biotic stresses are there, fungal diseases are there, insect pests are there, weeds are there. If we have to go toward the soil and nutrient deficiencies, then we have a soil degradation, organic matter loss, or we have a micronutrient deficiencies are there. Next issues are water management is also, groundwater depletion is there due to in Punjab and Haryana, low irrigation efficiency is there, then genetic and breeding limitations are there, narrow genetic base of our modern cultivar, yield stagnation is there, and last one is the
agronomic management practices are also there. So these are the some of the issues which are related with our production of the wheat. But second one is how climate play a role in this. In last year, 2024-25, maximum temperature is more as compared to the 23-20. ये बात समझने वाली है. 23-24 में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 24-25 के मुकाबले में कम था, लेकिन जो लो टेम्परेचर है वो जो है 24-25 में कम होने के कारण हमारी ईल्ड जो है, क्योंकि वीट जो है ज़्यादा टेम्परेचर की बजाय अगर कम टेम्परेचर जो है उसके फेवरेबल में हो तो उसमें ईल्ड उसकी जो है वो अच्छी आती है. सिमिलरली रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सनशाइन डेज हमें हमारी क्रॉप को अच्छी तरह से मिल जाएं तो उसके साथ क्या होता है कि हमारी ईल्ड जो है वो बढ़ती है. सो टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो play a very important role, and these are the some of the solutions, जो strategies how we develop for heat and drought tolerance varieties. We go for heat tolerant varieties. और तो गर्मी को कम करने के लिए we have to use a potassium nitrate spray in the month of March. That is also important for our conservation agriculture. You are go for the laser leveling or drip irrigation, biotic stresses management. We have to go for the crop rotation change कर सकते हैं हम जो है. Next one is the soil and nutrient management. 4R. 4R means when जब हमने अपनी management करनी है soil के लिए, we can apply right source, right time, right place, and right dose. That is very fruitful for our production. And high yielding varieties, I just take 1 minute, sir. High yielding varieties, we have developed in PAU, PBW 872, PBW 826. These are the very high yielding varieties presently in the northern western plain zone. PBW 826 varieties released right from Jammu to Odisha. सो ये बात शो करती है कि जो एक वैरायटी सारे जो आधे भारत में बीजी जा रही है उसकी जो है वो गर्मी को कितनी अच्छी तरह से सहन कर सकती है. वी नो दैट इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन जोन. उसके बाद हमने बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज डेवलप करी हैं, PBW Zinc 2 एंड PBW Zinc 1, एज वेल एज वी हैव टू डेवलप ए PBW 1 chapati and PBW 1 biscuit. In addition to these, we have released one of the variety that is called a resistant starch variety, PBWRS1. So this is just, I want to show you that these varieties perform very well. They give a very good yield in their, this chapati variety, its chapati score is 8 out of 10. If the chapati score is 8, this means that that variety performs very good because it is a very good in sweetness. Phenol reaction is मिनिमम. मैं आपको एक बात बता दूं, जब फिनोल रिएक्शन कम होता है तो उसका जो आटा हम अपने घर में रखते हैं गुन के फ्रिज वगैरह में तो वो काला नहीं होता. दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फिनोल रिएक्शन. सो फिनोल रिएक्शन मस्ट बी ए मिनिमम एज कंपेयर टू द अदर वैरायटीज. So RS1 is very important variety. We recently released this variety. This has a high resistance starch. Starch सभी varieties में होता है, लेकिन अगर starch की maximum resistance starch ज़्यादा होगा, whenever we consume our chapati, then in our blood concentration of glucose is increased very slowly. So resistance starches play very important role regarding the diabetes. Similarly, PBW Zinc 2 variety is a very good variety because during the COVID period, doctors emphasized that you have to take a zinc tablet. So if we have taken chapati, in addition to the we have more zinc in this variety. Now we have go towards the PBW biscuit 1 also, because if your spread factor is more, that is very fruitful for the biscuit making. In whole India, we have so far released 43 varieties at national level and 28 varieties at state level. So our total varieties are 71. So these are the some of the challenges for the future. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I am Pradeep Bhati, working as a wheat bidder in Visa since last 9 years. So I will take note.
or only 5 minutes I will take. I will give the quickly. So how we can enhance the genetic gain by using modern breeding tools and technology. So this is about the global and South Asia wheat area and production. In last year, the total wheat area globally 224 million hectare and production is around 800 million ton. And the India production is 117.5 million ton. So South Asia contribute 19.7% overall the globally, and India alone contributes 14.7%. So these are the major challenging in different wheat growing zones. We have 5 wheat growing zones. Each zone have different problems. Like Northwestern Plain zone have yellow rust, eastern blights. This is the India wheat area production in last 25 years. You can see the trends. Now we have 117.5 million ton production. These are the methods and tools deliver faster genetic gain, precision phenotyping, rapid generation, advancement scheme, speed breeding, genomic approaches, target environment specific breeding, development of BNI technology in wheat, and fast track lead lines. So I will quickly skip this slide. So speed breeding, we can transfer the trait like a stripe rust resistant. In the last year, we conducted more than 40 trials at BISA sites. Around 20,000 lines we evaluated our BISA sites. This is the overview of our trials, Ludhiana, Jabalpur, and Pusa. So this is about the use of digital tools and high throughput phenotyping. We use drones for NDVI and canopy temperature, and fieldbook apps for data recording. This is about the large scale phenotyping for the stripe rust. Thanks to IAWBR and PAU, they provide us the inoculum for stripe rust because the Punjab is the highly hot spot for the stripe rust. So we screen more than 10,000 lines every year for stripe rust. This is about the germplasm received from Summit. So last year we conducted our trial at 13 locations, 3 at BISA site and 10 our national partners. So here you can see the yield. The maximum yield is, we achieved at Ludhiana, 8.8 ton per hectare, followed by the Jabalpur and Pusa. This is the distribution of yield under 13 DP sites in India. This is about the zinc and iron content. We screen all the lines for zinc and iron content. Here you can see 21% lines had more than 40 ppm zinc and 53 lines had more than 35 ppm zinc. So we also introduced the BNI technology in India with collaboration JIRCAS and ICR and BISA. So with this technology, we can save at least 30% of the nitrogen through BNI. This is the overview of our trial. We conducted trial under 0% nitrogen, 50%, 75, and 100. So here you can see the results. So BNI lines, we can get 10% higher yield than the normal lines. So now we converted our Indian material through BNI technology. Now we have the Indian lines. Within 2-3 years, we will have the BNI wheat variety in India so that we can save at least 30% nitrogen by using BNI wheat varieties. We also invite our national partners for field day. They visit our sites and they select the material based on their requirement. We provide the material as well as the data for all 3 BISA sites. We also train our national partners for the capacity building, for the high throughput phenotyping, genomic selection, and all those technologies. This is about the fast track Summit BISA elite lines seed dissemination to the national partners. So every year more than 50,000
CIMMIT lines we provide our national partners. So this is about, again, nurseries. Last year, 459 CIMMIT trial nursery provided to the India. 61 institute received from the CIMMIT, Mexico. These variety released through CIMMIT in Nepal. More than 19 wheat variety released in Nepal in the last 10 years. Out of them, 13 are derived from the CIMMIT lines. We also established a wheat blast platform at Bangladesh. This is about the impact of CIMMIT ICR BISA collaboration in last 11 years. 184 wheat variety released through Central Variety Release Committee. Out of them, 102 are from CIMMIT ICR BISA collaboration. Some of the private company, they also release the variety from CIMMIT germplasm. This is the list of the top 10 wheat varieties based on the last year breeder seed indent. Out of 10, here you can see the highlighted one. 6 are directly released from the CIMMIT germplasm, which cover almost 50% of the area in India. The last workshop, total 23 wheat variety and durum variety release in India identified. Out of them, 8 are spring wheat variety and 2 durum wheat variety directly introduced from CIMMIT material. So this is a DBW 187. Earlier, this variety released for northeastern plain zone, but now this variety released for all 3 mega wheat growing zone like northwestern plain zone, central zone, and eastern zone. Again, DBW 327, this variety now also released for 2 zones, central zone and northwestern plain zone. This is biofortified and heat and drought tolerant wheat variety, also resistant for the blast. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अब चूंकि अलग अलग वेराइटीज़ की यहाँ पर बात हुई है, तो अब मेरा, चूंकि जब भी हम नई वेराइटी की बात करते हैं तो उसमें वेदर का बहुत बड़ा रोल होता है कि क्या जो हमारी नई वेराइटी अगर हम डेवलप करने जा रहे हैं तो क्या जो हमारा वेदर सिस्टम है वो सपोर्टिव है, क्या हमारा जो क्लाइमेट का पूरा मॉडल है वो सपोर्टिव है। ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्मर के लिए, अगर यहाँ पर गेहूं के कोई किसान हैं तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वेराइटी हमारे खेत के लिए, या फिर जो मौसम आप जिस एरिया में खेती कर रहे हैं गेहूं की, उस एरिया के मौसम के हिसाब से कितना फिट है। तो जतिन सिंह जी हैं, चेयरमैन हैं स्काईमेट वेदर के। स्काईमेट एक आप सब जानते होंगे 2 ही फोरकास्ट आते हैं मानसून के हमारे यहाँ, एक तो IMD का जो सरकारी एजेंसी है और एक स्काईमेट का जो प्राइवेट वेदर एजेंसी है। तो जतिन जी, अब आप जरा बताइए, जो वेराइटीज़ यहाँ पे भी डिस्कस हुए हैं प्रेजेंटेशन में, क्या हमारा जो वेदर का मॉडल है, जो हमारा वेदर सिस्टम है, वो सपोर्टिव है इन वेराइटीज़ के लिए? सर, आपको लगता है कि जो नई वेराइटीज़ पे काम हो रहा है उसके लिए हमारा जो वेदर सिस्टम है, जो हमारा मानसून है, वो बिल्कुल सपोर्टिव है? सर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस लेवल यू लुकिंग एट। लेकिन द dilemma with wheat is it's a rabi crop, correct? So it is dependent on the past monsoon, but it is also dependent on a winter season. Now that winter season में 2 components होते हैं। एक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट स्टेबल होना चाहिए, और दूसरा जो प्रॉब्लम लास्ट 5 साल में देख रहा हूँ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कि आपकी अचानक हार्वेस्ट के समय आपका रेनफॉल, हेल, और जो समर का एक रेनफॉल, प्री मानसून समर सीजन रेनफॉल कई बार बहुत तबाही मचा कर गया। तो द एक्सटेंट दैट इस इलाके में भी लोग भूल जाते हैं, सुसाइड्स हुए हैं, फार्मर सुसाइड्स हुए इस बात को लेकर। इन आई एम फॉरगेटिंग द ईयर। सो इन्होंने अब बताया कि 2021 में अचानक देयर वाज अ ड्रॉप बिकॉज देयर वाज अ वेरी पावरफुल हीट वेव दैट केम इन वेरी अर्ली। सो द प्रॉब्लम विद climate change is this. In the first 20 years of climate change, it was your monsoon that had got destabilized. In the sense, between about 2000 and 2015, there are about 6 to 7 droughts. Between 1990 and 2000, there is no drought. There is a long period of without droughts. So what you were आपको को मिल रहा था, आपको बहुत
कभी बहुत अच्छी बारिश और कभी खाली, और आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लासिक ईयर्स हैं जैसे 14-15 में 2 ड्राउट्स बैक टू बैक, और आपका 2019 एक बहुत ही खराब साल था, उसके बाद से आपका मानसून एक्चुअली अच्छा हो गया है। लेकिन हमारी फूड सिक्योरिटी में एक हमारे पास गिफ्ट था कि मानसून ऊपर नीचे होता था, लेकिन आपकी जो रबी क्रॉप होती थी वो भी आपके पंजाब हरियाणा की इरिगेटेड क्रॉप है, वो स्टेबल है, वो आपको एक स्टेबल आउटपुट दे के ही जाएगी। पर क्लाइमेट चेंज का जो दूसरा इम्पैक्ट आया है वो आपका विंटर बहुत ही अजीब सा हो गया। एक तो इट इज़ वेरी शॉर्ट, आपकी जो एक्सट्रीम विंटर होती है वो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी होती है, उसके पहले और उसके बाद मल्टीपल टाइप्स की इंस्टेबिलिटी होती है। एक है कि ऑनसेट लेट हो गया, दूसरा हुआ कि अचानक आपका एक हीट वेव आ गया, तीसरा हुआ कि जब साल अच्छा होता है तो एक्सटेंडेड हो गया, और तीसरा हो कि आपकी ये हेल का प्रॉब्लम पहले जो होता था, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर 20 years ago, it was something that was very rare in the plains and mostly in the mountains. Now hail is a serious problem. So when you ask me this question, can varieties deal with this? I am not a geneticist. It is up to the geneticist to decide. What I can tell you is the design of the variability of weather that is going to come over the next 20 to 30 years. We cannot take our winters for granted. It is not cold enough anymore. Also, you know, since 2019, India has been lucky that 20, 21, 22, 23, 24, 25 काफ़ी, मतलब जबकि IMD ने ये समझने की बात है नॉर्मल ही कम कर दिया है, इसलिए आपको 108 दिखता है। आज the latest monsoon last year was 108, which was 937 millimeters of rainfall over a normal of 860. 5 years ago, the normal was 890, but still it is a good, you had a stable monsoon. Now, what if you get into a period of, I'm building a really worst case scenario in which you go into dry season, so your reservoirs are not that strong, your soil moisture is low, and you end up with a bad winter. Now, how will a geneticist design for that set of problems? So I can help in figuring that out, but what wheat belt has to deal with is an unstable, unpredictable winter. The averages, if you design anything that is based on an average of last 20 years, उसमें folly है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बात जतिन जी ने कही है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि व्हीट एक रबी क्रॉप है, और जतिन जी कह रहे हैं कि आने वाले सालों में आपको विंटर उतना कोल्ड नहीं दिखेगा, तो तब उस वक्त में फिर आपकी जो वैरायटी है वो कैसी होनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर आपको क्या काम करना। अगर विंटर में अगर मान लीजिए ठंड नहीं है जो कि गेहूं को चाहिए, तो फिर उस वक्त में उस लिहाज से उस वेदर को देखते हुए क्या वैरायटी डेवलप होनी चाहिए, ये जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। इस पर सर कुछ कहना चाहेंगे आप, जो बात जतिन कह रहे हैं कि विंटर उतना कोल्ड नहीं होगा और जो कि व्हीट को लिए चाहिए, तो क्या विंटर रेजिस्टेंट क्रॉप या वैरायटीज़ हम कर पा रहे हैं रेडी, या उसके ऊपर काम हो रहा है? झा साहब, ऐसा है कि जैसे विंटर के जतिन सर ने कहा कि विंटर जो है इतना लॉन्ग नहीं हो पा रहा है ना, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ड्यूरेशन जो है वैरायटी की वो शॉर्ट की जाए, क्योंकि अगर वैरायटी की ड्यूरेशन शॉर्ट होगी तो उसमें टेम्परेचर, ये देखिए जब हम गेहूं की सोइंग करते हैं तो वी हैव टू नीड ए मिनिमम टेम्परेचर इज नियर अबाउट 15 एंड मैक्सिमम इज 27, और जब हमारी इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो वो टेम्परेचर, इफ इट टेम्परेचर इज नियर अबाउट 30 और 35, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, बट वेन एवर इट इंक्रीज टू दैट, है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि जो मार्च में टेम्परेचर है, मार्च में एकदम इंक्रीज होता है टेम्परेचर, अगर हम उसकी ड्यूरेशन क्रॉप की, अच्छा, आप कह रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी अगर हम लोग, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी का प्रोडक्शन पे PPW 826 जो हमारी वैरायटी PPW 826 है ना, मोस्टली जो वैरायटीज हैं दो आर मैच्योर इन 155 और 157 डेज, और ये जो वैरायटी है दैट इज मैच्योर इन 145 डेज, वी हैव विंडो ऑफ 12 डेज। नहीं, मैं ये अच्छा आपने कहा, लेकिन मैं इस पर एक सवाल ही पूछना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैरायटी होंगी, उसका प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या सेम रहेगी कंपेयर टू जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है? यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जो अपने ट्रायल करते हैं ना वैरायटी डेवलपमेंट के लिए, उसको कंट्रोल कंडीशंस में भी करते हैं, ताकि ग्रीन हाउस में कहते इतना टेम्परेचर हो जाएगा, कितनी यील्ड आएगी, वो सभी हमारे टेस्ट होते हैं और सारी लोकेशंस पे होते हैं, नियर अबाउट 25 और 30 लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि ईस्टर्न जोन जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, सारा हिंदुस्तान जो है 6 जोन्स में बांटा हुआ करने के रिलेटेड, नॉर्थ हिल जोन, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन जोन, जो ये वाला हमारा जोन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और थोड़ा यूपी का तराई वाला ये का, NEPZ में आ जाता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया,
और सेंट्रल में आ जाता है गुजरात और मध्य प्रदेश, और उसके बाद जो नीचे है महाराष्ट्र. सो हम वी हैव टू टेस्ट आवर वैरायटीज इन ऑल द जोन्स, तो ये देन जो वी हैव टू short- कलेक्ट ये जो द short- डाटा. ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज होंगी, क्या ये पूरे के पूरे 6 जोन में कारगर होंगी या पर्टिकुलर किसी जोन के लिए फिट होगा और किसी जोन के लिए नहीं? ये होता है कि जैसे हम उस वैरायटी को सभी जोन में टेस्ट करते हैं, वैरायटी जहाँ पे अच्छी यील्ड दे रही है और रेजिस्टेंस दे रही है, वहाँ पे हम उस वैरायटी को रिलीज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ आवर वैरायटी PBW891 दैट इज रिलीज लास्ट ईयर इन ए पेनिसुलर जोन, but we have to breed that variety in according northern western plain zone, what that perform better in the peninsular zone, so we release that variety in the peninsular zone. एग्जैक्टली. अब चूंकि देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म अजय जी ने और राजीव जी ने तैयार किया है कि साइंटिस्ट भी हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं और फार्मर भी हैं. तो फार्मर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं साइंटिस्ट से, एक्सपर्ट से, कि वो जो खेती कर रहे हैं उसमें उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाए. तो मैम, आप फार्मर हैं व्हीट की, आप जब गेहूं की खेती कर रही हैं या करती हैं तो क्या चैलेंज फेस कर रही हैं प्रोडक्शन? आप जितनी खेती कर रही हैं, जो भी आपका एरिया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जितना प्रोडक्शन होता है, या आपको लगता है कि नहीं और ज़्यादा होना चाहिए? सर, जैसे वीट की हम करते हैं, जो यील्ड है वो बहुत ही मतलब पहले के टाइम से तो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि जो मतलब फार्मर्स हैं वो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह है ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने लगे हैं. मोस्टली मुझे लगता है उनका जो फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का तरीका है, लाइक वो अपने पुराने समय से जो यूज़ कर रहे हैं वही है. उनको ना तो कोई मतलब प्रॉपर गाइडेंस है, उनके पास नॉलेज है कि हमने इतना यूज़ करना है या इतना कितना मतलब चाहिए हमारी सॉइल को. बट वो ये नहीं देख रहे कि जो सॉइल की क्वालिटी है, हेल्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो रही है. और दूसरा बात ये है कि जो यील्ड है, जैसे आपने बोला कि यील्ड कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से कि यील्ड ये हमें मतलब प्रॉब्लम आती है. ऐसे नहीं, हम PAU जाते हैं, हमें वैरायटीज़ के बारे में पता चलता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनसे डिस्कस करते हैं, हमारे जैसे KV के सेंटर्स हैं उनसे भी डिस्कस करते हैं. तो उनका यही है कि या तो क्लाइमेट चेंज है, और जो लोग मतलब गवर्नमेंट जो जब हम राइस वगैरह ग्रो करते हैं तो वो टाइम लिमिट देते नहीं है, या तो बहुत एडवांस दे देते हैं. इसी वजह से सर जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है. कम हो रही है? हाँ जी. आप कह रही हैं, हाँ जी. है ना? तो बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, राइट? आप ये करेंगे उसकी वजह से यील्ड पे इम्पैक्ट आ रहा है. यस सर, और क्लाइमेट भी में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से. सर, आप किसानों के संगठन से जुड़े हुए हैं, IPO से. आप बताइए कि जो आपके मेंबर्स हैं, फार्मर मेंबर्स हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या वो जो खेती कर रहे हैं गेहूं की, क्योंकि अभी मैं जो डेटा देख रहा हूँ उसमें जो ग्लोबल एवरेज है वो मेरे ख्याल से 3 टन पर हेक्टेयर है, और इंडिया का एवरेज 3.5 टन के आसपास है, राइट? तो मतलब हम ग्लोबल एवरेज में ठीक है. और पंजाब, जहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इंडिया के व्हीट के, उसमें पंजाब का सबसे अच्छा है यील्ड. पंजाब की यील्ड सबसे अच्छी है. तो अब आप जरा बताइए कि ऐसे सिचुएशन में भी क्या ये फार्मर फील कर पा रहे हैं कि हम और ज़्यादा पैदा कर सकते हैं इसी रकबे में, इसी एरिया में, अगर कुछ और सपोर्ट मिल जाए वैरायटीज़ का, सीड का, या कुछ और मोर्चे पर? Thank you, sir. First of all, thanks for having me here. Yes, पंजाब की यील्ड मुझे इंडिया में क्या, आई थिंक वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड. यस. तो पंजाब की 5-5.25 अभी जो वैरायटी हम देख रहे हैं प्लस है ना? 5.9 टन जो 5.9, बताया, और 5-5.25 तो ले रहे हैं. हाँ. हाँ ठीक है, जब उसको बल्क करके देखते हैं तो स्टैटिक्स तो पता ही, कितने बड़े मुल्क में इरीगेटेड को ड्राई एक्सेप्ट करेगा तो कहीं ना कहीं होगा. मैं सस्कैचुअन रहता हूँ, तो वीट की वहाँ पे आधी यील्ड है इससे. आधी यील्ड है. क्रॉप हम देख के उनको बता देते हैं, बट जब आप यील्ड करते हो तो नेचुरली न्यूट्रिशन कह लो या प्रोटीन कंटेंट है वो लूज़ करते हो आप. वो हार्ड वीट करते हैं, समर में उगाते हैं, हम ठंड में उगाते हैं, रबी है. और जो सवाल फार्मर्स के बारे में आपने पूछा था सर, अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट पंजाब में यहाँ वीट की एक इकोसिस्टम में बात हो रही है. वरना वीट के लिए तो बाएं हाथ का खेल समझते हैं ना किसान, उनको पता है कि, और है भी है, बट इकोसिस्टम बना हुआ है. इकोसिस्टम MSP भी है, PAU रिसर्च स्टेशन है, सिमट यहाँ काम कर रहा है, हाई वैरायटी है, वर्कमैनशिप फार्मर ने प्रूव की है ओवर द ईयर्स. लेकिन उस इकोसिस्टम में जो चीज़ एज ए फार्मर, मैं डेयरी FPO से आता हूँ, हमारा एक डेयरी FPO था, मुझे लग रहा है कि मिल्क की स्टोरी और वीट की स्टोरी को अगर हम देखें दोनों सेम है.
दूध में हम NDRI जाते थे करनाल, काफ़ी कुछ वहाँ सीखने, चीज़ के बारे में, मोज़रेला के बारे में, ये वो। एंड में हमें बताया गया कि यार जिसका दूध बिकता है ना उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वीट में क्या है कि जिसका MSP पे बिकता है ना उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईल्ड पे ध्यान दो, एक ही काम है। स्टोरेज हमें पता है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की सर ने जो बात की है वो दोनों स्टेजेस पे है। क्लाइमेट वैगरीज अपनी जगह पे रोल प्ले करती हैं, अनटाइमली रेन एंड पोस्ट हार्वेस्ट जितना ग्रेन, नॉर्थ अमेरिका का मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, हम जो स्टोरेज बिन्स हैं, साइलोज हैं, उनको देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि ये फार्मर कितने का 1000 हेक्टेयर का फार्मर होगा। आई मीन साइज ऑफ बिन बता देते हैं। उनकी हार्वेस्ट मैकेनाइज्ड हार्वेस्ट है, जीरो टिल पे वो 50-60 साल से काम कर, प्योर नो टिल। फर्टिलाइज़र नेचुरली वो कम है हमारे जैसे, अभी अमन ने बताया। राइट फ्रॉम द आई मीन स्टार्ट टू एंड हर चीज़ मैकेनाइज्ड भी है, स्टोरेज भी है, वैल्यू एडिशन भी वो लेते हैं, दुनिया भर में वो बेचते हैं। गवर्नमेंट की जो उनका ट्रेड कमिश्नर्स हैं उनके साथ अभी काम करते हैं। वी हैव सीन कि हाउ एक्टिवली दे आर वर्किंग। राइट। हमारा जो एक्सपोर्ट सिनेरियो, आई मीन बाय डिफ़ॉल्ट रशिया वार की वजह से कुछ चलो एक्सपोर्ट हुआ, बट अगर आज हम बेचने जाएं सर हम बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, पंजाब तो हम वैसे भी पोर्ट से दूर हैं, MP का, गुजरात का वीट बिका है 2800-2900 तक, अफोर्डेबिलिटी आती थी। पंजाब के वीट को तमिलनाडु भेजना हो तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाना आसान पड़ता है, इंडस्ट्री के हमारे साथी हैं। तो वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक वो इकोसिस्टम जो 70s, 80s, 90s तक हमने देखा था उसको रिवैम्प करना, प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी एक्सटेंशन में, मार्केट में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे फार्मूले हैं वो हम अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है आप कह रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है, जो बात हम कर रहे हैं कि वेराइटीज़ हम क्लाइमेट के हिसाब से किस तरह से डेवलप कर पा रहे हैं या करना चाहिए हमें। एक दूसरा बड़ा इशू ये है कि क्या हम जो वेराइटीज़ पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रेन बेस्ड वेराइटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, मतलब ये कि भाई गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है या कुछ स्पेशल क्वालिटी। क्योंकि सोमनाथ जी यहाँ बैठे हैं ITC के, वो बता रहे थे मुझे कि पूरे इंडिया में मतलब करीब करीब बहुत बहुत वेराइटीज़ हैं व्हीट की, और अलग अलग एरियाज़ में अगर आशीर्वाद का आटा जाता है तो वो वहाँ के लोकल वैरायटी के हिसाब से या लोकल जो कंजम्पशन है, जो टेस्ट है, उसके हिसाब से डेवलप होता है। तो डॉक्टर प्रदीप, आप हमें बताइए कि क्या इस बात पे हम लोगों ने काम किया है या हमें करना चाहिए कि वैरायटीज़ के ऊपर सिर्फ इसलिए काम नहीं होना चाहिए कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, बल्कि मल्टीपल यूजेस, सिर्फ रोटी के लिए नहीं या सिर्फ अगर राइस का वैरायटी सिर्फ चावल के लिए नहीं, बल्कि जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसको फोकस करते हुए क्या उस लिहाज से वैरायटीज़ पे काम हो रहे हैं क्या? थैंक यू झाजी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मावी जी ने, PAU में ऑलरेडी ऐसी वैरायटी डेवलप की हैं, स्टार्च रेजिस्टेंट हैं, चपाती में की क्वालिटी उनकी ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, और बहुत वैरायटी भी डेवलप हुई हैं जो क्वालिटी के लिए ही हैं। इवन हेक्टोलीटर वेट को ध्यान में रखते हुए भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और आपने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यील्ड को ही देखते हुए काम करना है। जैसे इंडिया में फर्टिलाइज़र यूरिया का बहुत बड़ा इशू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है, यूरिया के ऊपर काफ़ी सब्सिडी दे रही है। बीसा ने इनिशिएटिव लिया और जापान गवर्नमेंट के साथ में सिरकास एक इंस्टीट्यूट है, जापान इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, जो कि BNI पे काम कर रहा है लास्ट 20 ईयर्स से। BNI इज बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन। उसमें क्या है, प्लांट्स में जो रूट सिस्टम है उसमें नाइट्रेट इनहिबिटर प्रोड्यूस होते हैं, वो सॉइल में नाइट्रिफिकेशन एक्टिविटी को सप्रेस करता है। जो अमोनिया कन्वर्जन नाइट्रेट में होता है उसको वो रिड्यूस करता है, जिससे लीचिंग रिड्यूस होती है, नाइट्रस ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस होता है। हमने इंडिया में 2021-20 में स्टार्ट किया था वो प्रोजेक्ट थ्रू ICR कोलैबोरेशन में। IIWBR है करनाल, IRI न्यू दिल्ली है पार्टनर, CSSRI करनाल है, वीसा है, 3 साइट है वीसा की। तो अभी हमने उसका जो BNI ट्रेट है उससे क्रॉस बना के इंडियन जो वेराइटीज़ हैं लाइक PW 826 है, 872 है, ठीक है, सभी में वो ट्रेड ट्रांसफर कर दिया है। और हम इस स्टेज में हैं अभी BC2F5 में। नेक्स्ट 3 ईयर में वो वैरायटी रिलीज पाइपलाइन में ऑलरेडी हो जाएगा और 30% तक फार्मर नाइट्रोजन सेव कर सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी बेनिफिट होगा उससे कि जो पैसा सब्सिडी में खर्च हो रहा है वो सेव होगा। डॉक्टर गुरविंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा आप बताइए सर, मैं डायरेक्ट सवाल जो लोग व्हीट के ट्रेड से या उनकी खेती से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ आपसे
कि अभी जैसे मान लीजिए इंडिया का जो एवरेज है वो 3.5 टन पर हेक्टेयर के आसपास का एवरेज है और पंजाब का 5.5 टन से ज़्यादा है, राइट? कितना पोटेंशियल है सर, हम कितना बढ़ा सकते हैं इंडियन एवरेज को और पंजाब के एवरेज को, अगर हम ठीक तरीके से वेराइटीज़ पे काम करें और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर दें? झा साहब, ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि पंजाब की, पहले तो लास्ट ईयर वी है 5.3 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, और हम कुछ ऐसे ट्रायल इनिशिएट किए हैं जिनमें हम लोग 8 टन तक, 8 टन पर हेक्टेयर 8 तक, टन पर हेक्टेयर, 8 टन 8 टन तक जो है यील्ड आई है। तो मैं आपको ये बात वो बताता हूँ, ये तो 8 टन आप पंजाब की बात कर रहे हैं, राइट? पंजाब की बात कर रहा हूँ Okay, प्रेजेंटली। ठीक, हाँ। ये जो है ना 5.3 से एवरेज, बट वी हैव ए सम जीनोटाइप्स व्हिच आर परफॉर्म स्पेसिफिक एरिया में Okay. 8 8.5 टन तक भी यील्ड आ जाती है। हाँ। पर जब हम एवरेज लेते हैं तो वो 5.3 होती है। इसमें मैं आपको सभी को एक बात बता दूं कि पोटेंशियल यील्ड है। और एवरेज यील्ड, इनमें दोनों में काफी फर्क है। पोटेंशियल है, वी हैव ए मटेरियल व्हिच इज अप टू 8.5 और 9 टन इन केस ऑफ पंजाब। क्या करना पड़ेगा 8 टन? यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए क्या है, हमारा आईसीआर इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली, उन्होंने एक ट्रायल शुरू किया था। उसमें क्या था कि आपको जो है जितनी हम डोज डालते हैं एनपीके की, उसको 1.5 करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। जब आप डोज इंक्रीज करते हो, फार्म यार्ड मन्योर भी आपको डालना पड़ेगा, जो देसी खाद कहते हैं। जब आप देसी खाद डालोगे, आप अपने फर्टिलाइजर को 1.5 कर दोगे, तो उसके साथ क्या, जो वो एक्सपेरिमेंट आए थे उसमें हमारी यील्ड 8.59 टन आई थी, बट सब्जेक्ट दैट टू यू हैव टू यूज ए एक्स्ट्रा कोस्ट। आपको एक्स्ट्रा कोस्ट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाद डालोगे तो उसके साथ क्या है कि उसकी प्लांट हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। टू डिक्रीज द प्लांट हाइट या प्लांट हाइट को कंट्रोल करने के लिए आज को ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना पड़ेगा। सो मेरा जो मेन फोकस यही है कि बजाय टूवर्ड्स कि हम जाएंगे हम 8 टन ले ले 9 टन ले ले, वी फोकस नेचुरली कि जो वैरायटी नॉर्मल कंडीशंस में कितनी यील्ड देती कितनी है कर सकती है? उतना ही हमें Overall, करना चाहिए। अगर आप पंजाब में गेहूं की खेती कर रहे हैं तो मोटा मोटी आपके लिए वन लाइनर ये है कि अगर आप 5.5 टन 5 टन अगर पर हेक्टेयर अगर आप पैदा कर रहे हैं व्हीट, तो पोटेंशियल आपकी खेत का 8 टन मतलब 8 टन के आसपास का है। अब उस पोटेंशियल को आपको कैसे ग्रैब करना है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, ये अभी सर ने बताया आपको। और आप अपने आसपास जो साइंटिस्ट हैं, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनकी मदद ले सकते हैं ग्राउंड पे कि कैसे एक सस्टेनेबल ग्रोथ आपके प्रोडक्शन में और आपकी प्रोडक्टिविटी में हो। व्हीट में पोटेंशियल है, ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर यहीं पर आकर के वेदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जतिन जी, जो बात आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि खेती की कल्पना हम मतलब नेचुरल रेन, चूँकि हमारे यहाँ अभी भी जो खेती है मोस्ट ऑफ नेचुरल रेन पे डिपेंडेंट है, उसके बिना हम नहीं कर सकते। और तो आप जरा बताइए, जैसे आपने कहा कि आपका विंटर आने वाले वक्त में उतना कोल्ड नहीं होगा, तो क्या हमारा जो वेदर का सिस्टम है वो इतना एडवांस है कि हम फार्मर को बहुत पहले ये बता पाएँ कि हाँ, अगर आप इस एरियाज में गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आपको इस बार इस तरह के वेदर के लिए अलर्ट रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, इस बार बहुत सर्दी नहीं पड़ने वाली है, उसके हिसाब से आप तैयार हो जाएं। क्या हम बहुत एडवांस में ये बताने की स्थिति में हैं? हमारा सिस्टम उतना डेवलप्ड है सर? सर देखिए, इसका एक अगर सीधा आंसर दूं तो नहीं। आप वेदर फोरकास्टिंग में ऑपरेशनल फोरकास्ट, हवाई रिसर्च बेस नहीं बोल। अगर मुझे किसी को बोलना हो जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, विंटर में एक प्लॉट का और स्पेशली टेम्परेचर और रेनफॉल के लिए आप 10 दिन के ऊपर का फोरकास्ट नहीं दे सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो नहीं है। There are the only seasonal forecast that works and something that SkyMet pioneered is monsoon, जो आप अप्रैल में बता सकते हैं, जून से सितंबर के लिए, वो भी फुल इंडियन लैंड मास के लिए। There is no forecast that can tell you on a plot basis कि seasonally which way it will go, which means that you have to be ready for volatility. There's nothing you can do about it. Okay. Either you, and I guess it is the agri extension practice that should be able to manage variability, or unfortunately, Punjab does not have weather-based crop insurance system. Maybe because of it's not part of the PMFBY, but maybe millers and farmers should look at even if non-subsidized weather insurance, because आपके premiums कम आएंगे, क्योंकि it's a more or less stable crop and irrigated crop. So उसमें आपकी जो damages हैं, losses हैं, especially in at a signal जैसे 2021-22, which is not going to happen very frequently. So that premium would be low.
So a lot of the compensation can be done for those kind of losses, I think. So do you think our weather system now should focus beyond the monsoon forecast? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि मानसून के फोरकास्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ है, IMD का भी आता है फोरकास्ट, लेकिन आपको लगता है कि उसी रेशियो में, उसी इंटेंसिटी के साथ हमें विंटर फोरकास्ट में भी आना चाहिए या होना चाहिए? क्योंकि मानसून तो ठीक है, आप 4 महीने पहले बता देते हैं कि भाई 4 महीने का फोरकास्ट ये होने वाला है, बट वो विंटर में थोड़ा मिसिंग दिखता है कि टेम्परेचर कितना रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, बढ़ने वाला है, घटने वाला है। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मानसून का फोरकास्ट खरीफ की सोइंग के लिए। बिल्कुल, बिकॉज आपकी जो प्रोडक्टिविटी है राइस और वीट की अब तो बराबर ही हो गई है ना, फूड मेरे ख्याल से इस आसपास ही है। yes. तो अगर एक भी सीजन गया तो आपको फूड सिक्योरिटी में एज ए कंट्री आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अ लॉट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड व्हाट इज पॉसिबल। तो एक कोरिलेशन था कि एनसो का मॉनसून के साथ, बेसिकली पैसिफिक में अगर गर्म हो जाता है तो यहाँ ड्राउट हो आता है, पैसिफिक ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर बारिश हो आती है। फिर मैं प्रिंट में देख रहा हूँ कि इस साल लानीना होगा तो विंटर सीवियर होगा, इसका कोई स्टेटिस्टिकल कोरिलेशन नहीं है। प्लीज़, विंटर में अभी तक रिसर्च में जो ड्राइवर है सीजनल फोरकास्ट का वो मिला नहीं। ओके, नॉट टू से कि अगले 2-4 साल में नहीं आएगा, बिकॉज आई जस्ट केम अक्रॉस अ कंपनी विच डज 2-year फोरकास्ट ग्लोबली। तो योर रिमेंबर वन थिंग, सीजनली इट इज योर ओशंस दैट ड्राइव द फोरकास्ट, ठीक है। नाउ द monsoon का correlation has been known since the 1960s. It was made operational by us in 2012. Now I Google this. It might, if I can't do it, I will be very happy if somebody else does. You're looking for a teleconnection for the Indian winter. Okay, now winter का जो है वो Arctic wind से related है, वो upper latitude behavior है North India में जो बारिश होती है। आपको जो western disturbance है, what sets the winter in this country? Western disturbance? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक सीजन टाइम फ्रेम है, पर अगर आप एवरेज से डिविएशन देखेगा तो हर साल उसकी कहानी कुछ और ही है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक ठंड नहीं आती, जब तक स्नोफॉल नहीं होता तब तक ठंड नहीं आती। स्नोफॉल कब होगा वो आप डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो जो डिविएटेड मीन होगी ना उसे बहुत वेरी कर चुका है। नाउ व्हाट ड्राइव्स द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज स्टॉर्म्स इन द मेडिटेरेनियन सी दैट फ्लोट्स ओवर मिडिल ईस्ट एंड देन कम्स हियर। व्हाट ड्राइव्स द स्टॉर्म्स इन द मिडिल ईस्टर्न इन मेडिटेरेनियन, आई डू not yet, nobody knows exactly. So if I give you a driver or a teleconnection, it should work every time so that you can take an actionable decision. Right. Not कि मैंने बोला गलत हो गया फिर मैं खड़ा हुआ भैया हुआ नहीं। So वो अभी रिसर्च में है, पर मेरे ख्याल से जिस तरह से ग्लोबल डेटा मिलता जाएगा ना, somebody will figure this out. It'll take about 4-5 years. 4-5 years, ठीक है। अब मैम आप जरा बताइए, अभी हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, नई वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ, एक फार्मर से मैं जानना चाहता हूँ कि जब ग्राउंड पर आप वीट की सोइंग करने जाती हैं, गेहूं की जब बुआई शुरू होती है और हार्वेस्टिंग तक में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, जरा अपना ग्राउंड एक्सपीरियंस आप बताइए। सर जैसे हम ग्राउंड लेवल पर जैसे हम खेती करते हैं तो सर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फर्स्टली क्लाइमेट की, ठीक है, और दूसरा सर हमें जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है वो मतलब प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उनको सब्सिडीज़ वगैरह जो करनी चाहिए, क्योंकि जो सर मतलब छोटे किसान हैं उनके पास अभी जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, बहुत चीज़ें आ चुकी हैं, उनके पास मतलब उतना इनकम नहीं है उनकी कि वो उतना उनका वो ये सब चीज़ें खरीद सके। उसके लिए ट्रैक्टर भी बड़े हॉर्स पावर का चाहिए उनको, उनके लिए पीछे मशीन्स वगैरह वो भी उनको उतने लेवल की चाहिए। तो मेरे हिसाब से सर उनको प्रॉपर जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं तो ये मोस्टली ये क्लाइमेट का आ गया और ये दूसरा हम टेक्नोलॉजी का आ गया। टेक्नोलॉजी का, क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी। सर अब आप बताइए कि क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर क्या ग्राउंड पे काम हो रहा है और क्या सपोर्ट आपको चाहिए गवर्नमेंट से, क्योंकि बड़ा वाइब्रेंट स्टेट है पंजाब जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पैमाने पे काम भी हो रहा है वीट की अलग अलग वेराइटीज़ और बाकी चीज़ों को लेकर। क्या एक्चुअल सपोर्ट आपको चाहिए, ये जरा बताइए। सर मुझे लगता है पहले तो जो नहीं हो रहा वो भी मैं अगर बता दूं साथ में, क्योंकि जो चैलेंज अभी आपने पूछा उसमें एक चीज़ है कि इस सीज़न में पर्टिकुलरली आप देखोगे कि फर्टिलाइज़र मार्केट में शॉर्टेज में है, उसके साथ टैगिंग हो रही है और टैगिंग में जो हर्बिसाइड और जो नॉन रजिस्टर्ड या बोगस प्रोडक्ट बिक रहे हैं दे विल नॉट बी इफेक्टिव। और बोगस प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं? क्या आप सीड की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो एग्रोकेमिकल्स हैं, एग्रोकेमिकल्स की बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि गुल्ली डंडे का एक मेजर प्रॉब्लम है जो जिसके लिए अब प्री एमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ होते हैं। तो काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच वी सी जो यहाँ काउंटरफिट्स बिकते हैं, फार्मर उस पर पैसा भी खर्च कर रहा है, लेबर भी खर्च हो रही है
बट दे विल नॉट बी इफेक्टिव, और उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा जो ईल्ड पे, जो हमें तब जाके पता लेकिन चला मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप किसानों का एक बड़ा संगठन है आपका, क्या फार्मर एक्चुअली ग्राउंड पे उतना सीरियस हैं क्या ईल्ड को लेकर? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि चलो एमएसपी मिल रही है, एमएसपी की गारंटी है फार्मर को, तो फार्मर भी निश्चिंत है कि चलो पैदा करोगे, प्राइस तो मिल ही जाएगा, कौन उतना दिमाग लगाए। तो क्या एक्चुअल फार्मर भी ईल्ड बढ़ाने को लेकर उतना सीरियस है क्या ग्राउंड पे? सर मैं वही बता रहा हूँ, फार्मर सीरियस है तभी वो खर्च कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि रेगुलेटर का अपना काम है, पीएयू का अपना काम है रिसर्च करना, और ये जो ओवर द नाइट प्लेयर्स जो काम जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम फार्मर सॉल्व नहीं कर सकता, क्रेडिट Okay. पे उसको सारा सामान क्रेडिट पे लेना है, और क्रेडिट पे फर्टिलाइजर के साथ बिल्कुल। उसको टैगिंग करके जो सामान बेचा जा रहा है, आई थिंक बाकी चीज़ें भी अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं। क्लाइमेट की अवेयरनेस फ़ोन फार्मर के पास है, वो देख तो लेगा। फार्मर को ये नहीं पता, जैसे आप दवाई कुछ लेने जाओ, आप बोतल पे ईसी वैल्यू कुछ लिखी हुई है, अंदर कुछ है, और ये धड़ल्ले से चीज़ें पैक होके बिक रही हैं जिनके ऊपर नज़र नहीं है। ओके, जब ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है, फिर उस पर अगर हाँ, कोई इस पर काम होना चाहिए। ये ग्राउंड प्रॉब्लम आपने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं होती हैं, लेकिन इसके ऊपर काम होना चाहिए। इसके अलावा सर जो ठीक है टेक्नोलॉजी पे फार्म, पंजाब तो सर वो धरती है जहाँ पे लोग खर्चा करते हुए डरते नहीं हैं। हम अलग अलग सेक्टर में देखें, बायोमास में, मैकेनाइजेशन में, जो भी महंगी मशीनें हैं, पंजाब ही एक पैराडॉक्स है जहाँ पे ज़मीन इकट्ठी हो रही है दोबारा, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ अदर रीज़न। यहाँ पे एवरेज होल्डिंग 7-7.5 एकड़ तक पहुँच चुकी है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। जो बाकी रेस्ट ऑफ, कभी हम कहते हैं ना कि जो मॉडल रेस्ट ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा चलता है वो पंजाब में नहीं चलता, और जो पंजाब में चलता है वो दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मनी मसल है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंपोर्टेड मशीनें लेके आते हैं, एग्रोकेमिकल पे खर्चा करते हैं, बट डिस्पाइट एवरीथिंग ठीक है, जो काम एज ए रेगुलेटर जो गवर्नमेंट के करने वाले काम है, आई थिंक एक्सटेंशन को प्राइवेट सेक्टर के, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि नाउ इज द टाइम कि बिना प्राइवेट Okay. सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के नहीं होगा। क्विकली कर- 1-2 सवाल अगर कोई पूछना चाह रहे हो, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। अगर आप में से कि हमारे पास हमारे साथ अभी साइंटिस्ट भी हैं, वेदर एक्सपर्ट भी हैं, अगर आप में से कोई पूछना चाह रहे हो, क्विकली 1-8 सवाल पूछ सकते हैं। Yes. सब लोग संतुष्ट हैं आप लोगों के जवाब से, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ सर, यस, हाँ Okay. अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में सोई नहीं करनी चाहिए, राइट? हाँ, ओके, राइट, राइट, सर जैसे आपने कहा, हाँ मैं एग्री हूँ आपसे, आपकी बात से, पर जैसे हम राइस की हम राइस लगाते हैं, तो जो गवर्नमेंट हमें टाइम लिमिट देती है कि इस टाइम से आप राइस लगाना स्टार्ट करना है, तो फार्मर्स क्या करते हैं कि जिस टाइम पर वो, मतलब इस बार शायद एक पता नहीं 5 कुछ ऐसे डेट थी हमें कि मतलब जो राइस का था, चलो ठीक है हमने नहीं लगाया उस टाइम पर, हमने लेट लगाया कुछ, तो उसका इम्पैक्ट ये लोगों ने बहुत मतलब जल्दी स्टार्ट किया राइस को, उन्होंने जल्दी सारा अपना कर लिया,
बट उसके जो प्रॉब्लम्स आई उसके बाद जो एकदम सर क्लाइमेट जो चेंज हुआ, तो उसकी वजह से जो यील्ड थी उसमें उस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा। इस बार सर बहुत ज़्यादा जो राइस के मतलब फार्म से बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुए हैं, यील्ड बिल्कुल ही मतलब हाफ रह गई उनकी। तो ये सब सर ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपको, चलो ठीक है सर, मैं मतलब इतनी में जो नहीं, ठीक है। आई जस्ट लास्ट पॉइंट, जैसे जतिन जी ने कहा ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सर हमारे फार्मर्स का क्या, फार्मर क्या करता है कि अगर आई हैव 30 एकर्स, तो मैं क्या करता हूँ 2 दिन में ही 30 एकर्स की सोइंग कर देता हूँ, ताकि मेरा काम खत्म हो, मैं फ्री हो जाऊँ फिर घूमने फिरने के लिए, है ना। इस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज। हमें जो सोइंग है वो पार्ट्स में करनी पड़ेगी कि टुडे आई हैव टू सो 5 to 7 एकर्स, 2 4 5 दिन का रेस्ट करें, फिर 7 एकड़, क्योंकि अगर जैसे जतिन जी ने कहा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी सारी क्रॉप इफेक्टिव नहीं होगी, सिर्फ वही इफेक्टिव होगी जो उस कंडीशन में आएगी। ओके, सो वी हैव टू, हमें अपनी जो खेती है अपने दिमाग से साइंस के मुताबिक करनी पड़ेगी। यस सर। हाँ, सोमनाथ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। So I have a question on the weather. We believe that this is going to be a La Nina winter, right? So your observations on that, will it be cooler? Will it be longer? And what is the likely impact? Yeah. You can't forecast the winter. No, but then there is, we are already reading enough in the press. A lot of forecasters have said that this is going to be a La Nina winter, which is likely to be a colder winter. Acha, aap nahi bol rahe. Maybe you'd like to read that up, but that is quite a lot in the press. सीजनल स्केल पे, विंटर का फोरकास्ट सीजनल स्केल पे, मैं आपको हिस्टोरिकली, सी दिस इज कोरिलेशन। सो कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी कॉजालिटी। दे आर सेइंग कि लानीना होगा तो पानी पैसिफिक का ठंडा होगा तो यहाँ विंटर स्ट्रांग होगा। मैं तो बहुत सारे लानीना के साल निकाल दूँ, बोलते उसमें तो विंटर आपको स्ट्रांग था ही नहीं। फिर ये सब स्टेटिस्टिकली बैठता नहीं है। और ये कौन बोल रहा है? और आईएमडी के वो हमेशा रिवाइज कर देते हैं, तो पुराना फोरकास्ट का क्या हुआ? आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको एवरेज लेकर चलना पड़ेगा, आपको अनसर्टेनिटी के साथ जीना पड़ेगा। हो सकता हो भी जाए, बट जितना कंसिस्टेंसी, जितनी ना ये आपने ना आपकी जो मॉनसून की कंसिस्टेंसी है ना फोरकास्ट की, हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा बेटर रहेगी। आपकी विंटर की वेरिएबिलिटी, और द प्रॉब्लम विद वेरिएबिलिटी है ना, एक साल सही होगा, आपको लगा अगले साल भी सही होगा, फिर आप गलत हो जाओगे। ये मतलब जतीन जी एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं, साहिर लुधियानवी की 2 लाइन है कि मेरी खेती की ज़मीन ही बंजर थी, मेरी खेती की ज़मीन ही बंजर थी, मैं वाकिफ़ ना था, बेखौफ इल्ज़ाम देता रहा बरसात को। तो ये कह रहा है कि वजह कई बार कुछ और होती है, लेकिन वो एक्चुअल फोरकास्ट जो है, एक साइंस का एक लिमिटेशन बता रहा हाँ, हूं। लिमिटेशन। और आजकल एनीबडी कैन पब्लिश एनीथिंग एंड पीपल आर नॉट हेल्ड। हाउ मेनी पीपल लूज देयर जॉब्स फॉर अ रॉन्ग फोरकास्ट? हाउ मेनी टाइम्स IMD DG has lost his job because the forecast was wrong or explained in a paper why the forecast was wrong? तो आपको जवाब मिलता ही नहीं है ना। तो टैक्स पेयर के पैसे पर आप गाइड तो कर देंगे, पर गलती का आप खामियाजा नहीं भर देंगे। तो मैं इस एग्जैक्टली हाँ, तो इट्स बेटर टू से दैट कि सच बोलना कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। Thank you, Mritanjay ji. I would request all of you to please come forward for a group photograph. तो एस्ट्रोलॉजी और वेदर फोरकास्टिंग कुछ एक जैसा, समान जैसा ही लग रहा है मुझे तो आज की तारीख सर एस्ट्रोलॉजी इज मोर एक्यूरेट। Astrology is more accurate. All right. Please, I request Somnath ji to please come forward to hand over the mementos to our panelists. A round of applause, please.
So we now break for lunch. Oh, so there is one more special presentation for Mr. Jha. Please, sir. And Manisha ji also. This is from the Punjab Association, the Golden Temple. Where is the memento?